أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم لوگوں کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو بدلے میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، اور اگر کوئی منہ موڑے گا تو بے شک وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں، کافر کا لفظ آیا ہے، جو یہ کام نہیں کرے گا تو وہ کفر میں چلا جائے گا، اللہ ان سے محبت نہیں فرماتا۔ تو بہترین طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اب ہم ایسا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے اور انسانیت کے جس معیار پر فائز فرمایا، اس پر تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو بلند خوبیوں کے ساتھ ممتاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے زمانوں کے لیے راہ برے کامل ہیں، یعنی کمپلیٹ گائیڈنس آپ کی سنت میں ہے، آپ کی ذات میں ہے، اور ان زمانوں میں جو لوگ بھی کام کریں گے ان کاموں پر سنت کی مہر لگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ نے اس بارے میں بہت ہی واضح پیمانے اس سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 32 میں دے دی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور وہ اتباع کیا ہے کہ وہ سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پہلی چیز دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ہے، آپ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، آپ کے بلند و بالا مقام سے باخبر ہونا ہے۔ یہ کب ہوں گے؟ جب ہم سیرہ کی کلاسز پڑھیں گے، جب ہم اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز جو ہوتے ہیں سنیں گے، آپ کو ایجوکیٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات کا سب سے عظیم انسان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات قیامت تک کے زمانوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، یعنی آپ کی اتباع کو ہمارے اوپر واجب فرض کے درجے پہ قرار دے دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی واضح راستہ نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول دے دے اس کو پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کلیئر کٹ قاعدہ دے دیا ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جن کاموں کا ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہم نے کسی امام کے کہنے پہ، کسی لوگوں کے کہنے پہ، کسی خاندان کے وڈیروں کے یا نسل در نسل جو آ رہی ہے چیز، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہم صحیح حدیث دیکھیں گے، ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ ایویڈنس کیا ہے، اور ان سے رکنا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس مقام محبت اور مرتبے کے بعد اب دیکھنا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کردار کو، اخلاقی بلندی کو، انہوں نے آپ کی انقلابیت کو تسلیم کیا ہے، نان مسلموں نے کیا ہے۔ مائیکل ہارٹ جس نے 100 شخصیات پر کتاب لکھی ہے، وہ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب میں نہیں لے کر آئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی ہے۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ تاریخی انسان گزرے ہیں اور آپ کا پہلا نمبر تاریخ بنانے میں ہے، یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور اخلاق اور کردار کے لحاظ بھی آپ بلند و بالا تھے، یعنی زندگی کے ہر میدان میں آپ نمبر 1 رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں شک و شبہ سے پاک ہے، لیکن ان ساری باتوں سے پہلے آپ اللہ کے رسول ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس حیثیت سے انسان کو جو محبت محسوس ہو، انسان کو ایک خاص قسم کا والہانہ اور اشکانہ تعلق
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महसूस हो। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मर्तबे को तस्लीम करें और आपके रिसालत के मनसब से ज़्यादा हम फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ने जो हमको दिया वो अल्लाह ने कहा है कि मेरे नबी की इत्तबा करो। एक होती है इताअत, इताअत होती है खुशी से काम करो या नाखुशी से, मजबूरी से करो, लेकिन इत्तबा हर हालत में करनी है। यानी किसी के फुटप्रिंट पे, कदमों के निशानों पे अपने कदम रख के चलना है, यानी वो काम हूबहू ऐसे करना है जैसे कहते हैं ना डिप्लोकेट किसको कहते हैं, कॉपी जो होती है, आपने बिल्कुल वो उसको काम करना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और अरबी में कहते हैं कि गाय का बछड़ा गाय के पीछे पीछे उसके कदमों के चलता है, तो उसको कहते हैं ये इत्तबा। तो सीरत और सुन्नत को समझकर अमल करना है। ये कब समझेंगे? जब हम रसूल वसल्लम की सीरा के ऊपर किताबें पढ़ेंगे, कोई क्लासेस अटेंड करेंगे, कोई लेक्चर सुनेंगे। फिर अल्लाह कहते हैं कि जो ये काम करेगा फिर अल्लाह उनको दुनिया दुनिया और आखिरत में पूरी पूरी कामयाबी से नवाजेगा। अगर हमने कामयाब होना है तो हमने ये करना है। और ये कब होगा? जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत होगी, पहचान होगी। आ, आयत में हुक्म हुआ है कि पैरवी करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और एक रसूल की मोहब्बत, तो क्या ये एक ही चीज है? सवाल पैदा होता है ना। कुछ लोगों का दावा है कि वो अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को माइनस कर देते हैं, कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते हैं। अल्लाह ने इनके दावे को बातिल करार दे दिया है। कुरान में सूरतुल बकरा में पहले सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, जो हमें आखिरत पर लाए, अल्लाह ताला कहते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, कि वो ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह ने इनके दावे को गलत करार दे दिया है, वो ईमान वाले है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान बिर रसुल इसमें नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लम पे ईमान नहीं है। तो नजरान का वफद आता है, सूरत आल इमरान में जिक्र हुआ है। वो दावेदार थे, अल्लाह को भी मानते थे, आखिरत को भी मानते थे। उन्हें कहा कि हत्ता कि तुम तौरात को भी मान लो, इंजील को भी मानने के दावेदार बन जाओ, हत्ता कि तुम मूसा को भी मान लो, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मान लो। अगर तुम खातिमुन नबीयीन को नहीं मानते तो तुम्हारा ये पिछला सारे जो दावे किए हैं ना, सारे के सारे बेकार है। अवलन तो ईमान की इमारत खड़ी ही इस बात पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसलिए जो भी मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, कलमे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाता है। तो मैंने एतबार किया रसूल वसल्लम की ज़बान पर जो उन्होंने अल्लाह का पैगाम हमको दिया। अल्लाह ने किसी इल्हामी किताब को, तौरात को, इंजील को, ज़बूर को ये नहीं कहा कि वो कलामुल्लाह है। अल्लाह ने कुरान को ये शर्फ बख्शा है और क़यामत तक के लिए ये हदायत के लिए किताब है। तो जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो असलन इताअत अल्लाह की है, लेकिन अवलन इताअत रसूल की होगी, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना तो हम वो तरीका देखते हैं जो रसूल सल्लम ने बताया है। कानून किसका है? अल्लाह ताला का। रवाज किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इसमें हम अपने किसी इमाम को, किसी खानदान के वडेरे को, किसी पीर को उसको नहीं ला सकते। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद फरमाया। तो दीन तो मुकम्मल हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले पहले। अगर आज कोई दीन के नाम पे एक ऐसी चीज देता है जो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ना सहाबा किराम ने की है, ना ताबईन ने की है। तीन दौर हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुल कुरूनी खैरुल सुम्मल सुम सुम्मा यलूनहुम, के कुछ आते हैं कि जो उनसे मिलेंगे। तो तीन जो करन है, तीन जमाने वो जो है जो आ जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम का टाइम, साहबा कराम का, और ताबईन का, और तबा ताबईन के जो टाइम है, तीन वो जो
लोग हैं, ये जो है बेहतरीन थे। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि क्या हुआ, जब खिलाफत उमैया की आई तो उन्होंने तो फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है कि मुसलमानों के भी कत्ल हुए हैं। तो काम जो है ना, आज दुनिया की कोई सुपर पावर भी आपको कह दे दीन के नाम पे ये काम करो तो ये सवाब होगा, कभी भी नहीं करना। आप देखना कि क्या ये काम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, क्या सहाबा कराम ने किया था, खुलफाए राशिदीन ने किया था, क्या अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमको हुक्म दिया है? क्योंकि क्यामत के दिन हौज़े कौसर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, अपनी उम्मत को पहचान लेंगे, वजू के निशानों से नूर से चमक रहे होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, हायल हो जाएंगे, फरमाएंगे इन्होंने इस दीन में नई नई चीजें इजाद कर ली थी, जो आपने नहीं कही थी, जो कुरान ने नहीं कही थी, जो साहबा कराम ने नहीं किया था, तो उनको अलग कर दिया जाएगा। तो हम ना काम करें, अमल छोटा हो लेकिन वो कुरान और सुन्नत से साबित हो तो वो काबिल कबूल होगा। अगर जो है ना अमल जो है ना लाखों के बड़े हों लेकिन वो अल्लाह ताला ने नहीं कहे, रसूल सल्लम ने नहीं किए, तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस होता है, उसमें उन्होंने अपने रखी होती हैं, आप कहीं और से उठा के कोई और कोर्स उसमें शामिल नहीं कर सकती है। बिल्कुल यही हाल यहाँ पर भी है। तो ऐसा है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर हम क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तब नमाज कबूल होगी। ज़कात कितनी देनी है, वो किस पे, सोने पे कितनी है, जानवरों पे कितनी है, उशर कितना है, तो तब बात बनेगी। इनकी मानोगी तो अल्लाह ताला की इताअत होगी, इनके पीछे चलूंगी तो अल्लाह की चाहत पर अमल हो सकेगा। सूरतुन नूर में 56 आयत में अल्लाह फरमाते हैं अकीमुस्सलात वातुज़ ज़का वातिउर रसूल। देखिए नमाज और ज़कात के बाद किसकी इताअत का हुक्म है? रसूल का। फिर इसी आयत के आखिर में आता है ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर हमको अल्लाह ताला का रहम चाहिए तो हम ये काम करें, तो रसूल की इताअत पर अल्लाह ताला का रहम होगा। सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिरी आयत में आते हैं कि ए नबी आप जो हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करेंगे लोगों की। तो जो रास्ता रब की तरफ जाने वाला है, जो रास्ता हमको जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, उसकी रहनुमाई कौन करेगा? उसके हबीब रसूलुल्लाह सल्लम करेंगे, कोई और दुनिया का बंदा नहीं करेगा। यानी अल्लाह की इताअत करनी है तो वो कैसे होगी, वो हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, और खुलफाए राशिदीन के हम देखेंगे तरीके, हम साहबा कराम के तरीके देखेंगे, ताबईन के देखेंगे। तो जो काम उस जमाने में इन्होंने नहीं किया वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम जाएं तो अगर हम काम कर करके थके हुए हो ना, तो वो काम हमारे अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल हो। ऐसा ना हो कि वो हबाम मंसूरा हो जाए। सूरत वाक़िया में जो आता है, तो अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए, हमें सुन्नतों को आम करने वाला बनाए, हमें अल्लाह ताला बिदआत से और ऐसी चीज़ों से बचाए जो दीन में एडिशन बन जाती हैं, एक्स्ट्रा बन जाती हैं, जो कुछ लोगों ने इजाद करके उसके ऊपर फजीलतें बता दी हैं और आंखें बंद करके लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।